نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، راہ حق اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، ان کی دنیاوی اصلاح اور اخروی فلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی پہ انہیں سلام پیش کیا۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جسے اس نے چن لیا ہے۔ نبوت و رسالت کا منصب اکتسابی نہیں کہ کوئی شخص محنت اور کوشش کر کے اس منصب کو حاصل کر سکے۔ محنت اور کوشش کر کے کوئی بھی شخص حافظ قرآن بن سکتا ہے، عالم دین بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، ولی تو بن سکتا ہے، لیکن رسول اور نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت و رسالت کا منصب استفائی ہے، اس پہ وہی ہستیاں فائز ہوئی ہیں جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا تھا۔ نبی اور رسول صورت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت اور سیرت کے اعتبار سے بے مثال اور با کمال ہوتے ہیں۔ کوئی نقص اور عیب ان کے قریب بھی نہیں جا سکا۔ جتنے بھی نبی آئے وہ درجہ کمال پہ فائز تھے۔ اللہ نے دیگر نبیوں کو ایک ایک دو دو یا اس سے زیادہ جو کمالات عطا کیے، ان تمام کمالات کا مجموعہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جسم تو نبی کریم کا تھا لیکن رحمت اللہ کی تھی، سینہ تو نبی کریم کا تھا لیکن اس میں علم اللہ کا تھا، دل تو نبی کریم کا تھا لیکن اس میں چاہت اللہ کی تھی، ہاتھ تو نبی کریم کا تھا لیکن اس میں پکڑ اللہ کی تھی، قدم تو نبی کریم کے تھے لیکن راستہ اللہ کا تھا، زبان تو نبی کریم کی تھی لیکن پیغام اللہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کے باب کو بند کر دیا اور اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تو آ جائے گی لیکن کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ پہ نبوت کا باب بند ہوا تو یہ رشد و ہدایت، اصلاح اور فلاح کی ذمہ داری جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی طرف منتقل کر دی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔
उलमा नबियों के वारिस हैं। अब नबियों की उलमा की जिम्मेदारियां भी वही हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियां थी। नबी करीम की जिम्मेदारियों को कुरान करीम में इन अल्फाज में बयान किया गया कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि वो उन्हें अल्लाह के कुरान की आयात पढ़ के सुनाते हैं और उनके दिलो दिमाग का तज़किया करते हैं, उन्हें कुफर, निफाक, शिरक और बिदअत से पाक करते हैं और उन्हें तौहीद का रास्ता दिखाते हैं। कुरान करीम की 114 सूरतें हैं, उनमें कोई सूरत ऐसी नहीं, खा वो सूरतुल बकरा, सूरा आले इमरान जैसी बड़ी बड़ी सूरतें हों या सूरतुल असर और सूरतुल कौसर जैसी कोई छोटी से छोटी सूरत हो जिसमें तौहीद का बयान ना किया गया हो और शिरक की मुज़म्मत ना की गई हो। इन सूरतों में से एक प्यारी सूरत को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल के नामे नामी इसमें गिरामी से मौसूम किया और उस सूरह मुबारका का नाम रखा मुहम्मद। उसमें तौहीद का जो कलमा है उसे बयान किया गया, फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इस चीज़ को जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई दाता नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ियाँ बनाने वाला नहीं, कोई फरियादें सुनने वाला नहीं, कोई रिज़्क़ अता करने वाला नहीं, कोई मुश्किलात दूर करने वाला नहीं, कोई ज़िंदगी और मौत से हमकिनार करने वाला नहीं, कोई ज़मीन का फर्श बिछाने वाला नहीं, कोई आसमान की छत बनाने वाला नहीं, कोई सूरज को रोशन करने वाला नहीं, कोई चांद को मुनव्वर करने वाला नहीं, कोई सितारों को चमकाने वाला नहीं, कोई हवाओं को चलाने वाला नहीं, कोई दरियाओं को बहाने वाला नहीं, कोई बागात को उगाने वाला नहीं, कोई उनमें फल लगाने वाला नहीं, कोई कायनात का निज़ाम चलाने वाला नहीं, इल्लल्लाह। है तो सिर्फ एक अल्लाह है। पहले गैर की नफ़ी की, फिर अल्लाह का इस्बात किया। यही तौहीद है कि अल्लाह को इस तरह माना जाए कि कोई और निगाहों के सामने ठहर ही ना सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ सफ़ा पहाड़ी से जब किया तो लोगों को यही पैगाम दिया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का में पैगाम देते रहे, यही पैगाम दिया। ताइफ में पैगाम देने के लिए गए, यही पैगाम दिया। जुल्मजिन्ना की मंडी में गए, वहाँ भी यही पैगाम दिया। उकास के बाजार में गए, वहाँ भी यही पैगाम दिया। दीन की सरबुलंदी के लिए बदर में गए, उहद में गए, हुनैन में गए, खैबर में गए, जहाँ भी गए आपने यही पैगाम दिया। पूरी जिंदगी यही पैगाम देते रहे। जब आखिरी वक्त आया, प्यारी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, आपकी तबीयत नासाज थी, बुखार चढ़ा हुआ था। आपने अपनी पेशानी पे एक कपड़ा डाल रखा था, पास ही एक पानी का प्याला है, उस पानी के प्याले में हाथ डाल के पेशानी पे लगाते हैं और फरमा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी हालत में आप अल्लाह को प्यारे हो गए। आपने दुनिया को जिंदगी भर यही पैगाम दिया कि बाकी सब मखलूक हैं, सिर्फ अल्लाह खालिक है। बाकी सब ममलूक हैं, सिर्फ अल्लाह मालिक है। बाकी सब मरजूक हैं, सिर्फ अल्लाह राज़िक है। बाकी सब खाते हैं, सिर्फ अल्लाह खिलाता है। बाकी सब पीते हैं, सिर्फ अल्लाह पिलाता है। बाकी सब पहनते हैं, सिर्फ अल्लाह पहनाता है। बाकी सब सोते हैं, सिर्फ अल्लाह सुलाता है। बाकी सब मगते हैं, सिर्फ अल्लाह दाता है। बाकी सब हाजतमंद हैं, सिर्फ अल्लाह हाजत रवा है। बाकी सब मुश्किलात का शिकार हैं, सिर्फ अल्लाह मुश्किल कुशा है। बाकी सब तलबगार हैं, सिर्फ अल्लाह मददगार है।
या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के दर के भिखारी हो और अल्लाह गनी है जो काबिले तारीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात का पाबंद किया है कि नमाज की हालत में जब क़याम कर रहे हो तो इस अहदो इकरार को अपनी ज़ुबान से इस तरह दोहराओ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। ये भी उम्मत को तालीम दी कि तशहुद की हालत में इस अहदो पैमान का इस तरह इजहार करो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरी जिस्मानी, ज़ुबानी और माली बातें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह हमें इस अहद की पासदारी करने वाला बना दे। उलमा नबी के वारिस है ना, तो पहली जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों के सामने किस्से कहानियाँ बयान करके, मफरूज़े और दास्ताने घर के गैरुल्लाह की तारीफ़ों के पुल बांधने की बजाय सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह की तौहीद की दावत दें। ना सर्दी देखें, ना गर्मी देखें, ना ख़िज़ां देखें, ना बहार देखें, ना मुआफ़क़त देखें, ना मुखालफत देखें। अपना फरीज़ा अदा करें, लोगों को तौहीद की दावत देते रहें। नबी करीम की दूसरी जिम्मेदारी कुरान करीम ने ये बयान की है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आप लोगों को किताब और हिकमत की तालीम देते थे। किताब से मुराद कुरान है और हिकमत से मुराद सुन्नत और हदीस है। अल्लाह ने अपनी किताब में अपने बंदों को ज़िंदगी गुजारने का पैगाम दिया है कि तुमने इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, हज करना है, ज़कात देनी है, ज़िक्र व अज़कार करना है, तस्बीह व तहलील पढ़नी है, दुरूद व सलाम की सआदत हासिल करनी है। ज़िंदगी से लेके मौत तक तमाम मामलात में अल्लाह के साथ वफादारी को निभाना है। अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है और बादशाह हुक्म इशारों किनायों में देते हैं। कुरान ने भी ज़िंदगी गुजारने के अहकाम इशारों किनायों में दिए। उसकी तफसील के लिए अल्लाह ने अब प्यारे रसूल को मबूस फरमाया और ऐलान कर दिया, वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हमने आपकी तरफ ये ज़िक्र कुरान नाज़िल किया है ताकि आप लोगों के लिए बयान कर दें उसे जो उनकी तरफ नाज़िल किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों का बयान किया। नमाज इस तरह पढ़ो, रोज़े इस तरह रखो, सदका खैरात इस तरह दो, हज इस तरह करो, ज़िक्र व अज़कार इस तरह करो, तस्बीह व तहलील इस तरह पढ़ो, दुरूद व सलाम इस तरह पढ़ो, तमाम इबादात मामलात इस तरह सर अंजाम दो, खुशी और गमी के लम्हात इस तरह से गुजारो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बयान किया है। अल्लाह का पैगाम देने वाला कुरान जब कोई बच्चा या बच्ची पढ़ने के लिए बैठता है तो पहला सबक उसे ये समझाया जाता है, पढ़ो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। ये किताब लारैब है, इसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। सब की बात में शक हो सकता है लेकिन रब की बात में शक नहीं हो सकता। जिस तरह अल्लाह का कुरान लारैब है उसमें शक नहीं हो सकता, इसी तरह नबी करीम ने अपनी ज़ुबान से जो कुरान का बयान किया है वो भी लारैब है, उसमें भी शक नहीं हो सकता। कोई माने या ना माने, हकीकत यही है कि इमाम की बात गलत हो सकती है, खतीब की बात गलत हो सकती है, मुफ्ती की बात गलत हो सकती है, मुज्तहिद की बात गलत हो सकती है, फ़कीह की बात गलत हो सकती है, मुफस्सिर की बात गलत हो सकती है, मुहद्दिस की बात गलत हो सकती है, बड़े से बड़े बाकमाल की बात गलत हो सकती है, लेकिन आमना के लाल की बात कभी गलत
نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باقی اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے لب کھولتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نطق نہیں فرماتے، ان کی زبان سے اب وہی نکلتا ہے جو وہی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ رائے اور قیاس کے پیچھے چلنے کی بجائے قرآن اور حدیث کا لوگوں کا راستہ دکھائے۔ ہاں، جہاں رائے اور قیاس حدیث کے اللہ کی کتاب کے مطابق ہو اس پہ عمل کرنے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، لیکن اصل دین اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ اور پھر اس حوالے سے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ نبی کریم جب اللہ کا پیغام دینے کے لیے لوگوں کے سامنے آئے، پہلے اپنی سیرت اور کردار کو ان کے سامنے پیش کیا۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تم میں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، میرا بچپن تم میں گزرا، میری جوانی تم میں گزری، میرے شب و روز تم میں گزرے۔ کیا تم نے اب میری سیرت میں، میرے کردار میں یا میرے گفتار میں کوئی نقص یا خامی دیکھی ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا جربناک مرارا ما رأیناک الا صدقا، ایک نہیں بلکہ ہم نے تو بار بار آپ کو آزمایا، آپ میں سچائی اور سچائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے پوچھا میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا کھرا اور سچا ہی پایا تو فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں آنے والے سخت عذاب سے آگاہ کر رہا ہوں، اور اس عذاب سے بچنے کا راستہ یہی ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں توحید کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، شرک سے کنارہ کشی اختیار کر لو، تو وہ لوگ مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے۔ بات ماننے کی بجائے آپ کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون دیوانہ کہا گیا، آپ کے جسد اطہر پہ ہوجڑیاں پھینکی گئیں، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، آپ کے جانساروں پہ عرصہ حیات تنگ بنا دیا گیا، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، آپ مکہ کو خیر بات کہہ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن چاہت تھی کہ اللہ جلدی مجھے آبائی وطن اپنے گھر کی طرف اب بلا لیں تاکہ میں وہاں جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کروں، خانہ کعبہ کا طواف کروں، حجر اسود کو بوسے دوں، آب زمزم پیوں، صفا مروہ کے درمیان سعی کروں، اپنے درجات میں بلندی کے لیے جد و جہد کروں۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، آپ فاتح کی حیثیت سے اس مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، آپ کو تنگ کیا تھا، ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا، یہ آپ کے سامنے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ غلبہ عطا کر دیا ہے، ہم گنہگار تھے، جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، ہم اس کے سزاوار ہیں، لیکن ہم آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے وہ بات کہی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے کہی تھی، تو میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ کہنے والا کہتا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے،
दिल उनका बिछीना जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, खुद खाए जाओ और जवाहिर लुटाए। और खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। उलमा की जिम्मेदारी है कि नबी करीम की सीरत को अपनाएं। लोग जो नहीं मानते, मुखालफत करते हैं, उन पे गुस्सा ना करें, उन पे नाराज़ ना हो, उनसे इंतकाम ना लें, बल्कि हमदर्दी खैर खाही के उसी जज्बे के तहत अपने मिशन को जारी और सारी रखें जिस जज्बे के तहत नबी करीम ने अपना मिशन जारी रखा था। बात दुआ की हुई तो रमज़ान दुआओं का महीना है, फ़ायदा उठाएं। अल्लाह जब भी मौका दे, इसके लम्हात बड़े कीमती हैं, बैठ जाएं और अल्लाह ताला से दुआएं करें। अपने लिए भी दुआएं करें, माँ बाप के लिए भी करें, बीवी बच्चों के लिए भी करें, बहन भाइयों के लिए भी करें, अजीज़ व अक़ारिब के लिए भी करें, दोस्त अहबाब के लिए भी करें, अपने शहर के लिए भी करें, अपने मुल्क के लिए भी करें, अपनी मिल्लत के लिए भी करें। शहर के हालात भी आपके सामने है, वतन की कैफियत भी आपकी निगाहों से ओझल नहीं, और मिल्लत जिस करब से गुजर रही है ये भी आपकी निगाहों से मख्फी नहीं है। अल्लाह ताला से खास करके तमाम चीज़ों के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला ने ये महीना इबादत के लिए दिया है। इबादत का मगज़, इबादत की रूह, इबादत की जान दुआ है। दुआ के सिलसिले में हम बहुत कमज़ोर हैं, तो दुआएं मेरे भाइयों ज़रूर किया करें। दुआएं बड़ी कारआमद होती हैं। अल्लाह हमें दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के ज़िमन में नबी करीम ने फ़रिश्तों की भी दुआ का जिक्र किया। फरमाया हर रोज़ सुबह के वक्त 2 फरिश्ते नाज़िल होते हैं और वो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, अल्लाह जो तेरे दिए हुए माल में से तेरी राह में तेरी रज़ा के लिए खर्च करते हैं उसे और ज़्यादा अता फरमा। मेरे भाइयों, खैर के कामों में जो दोस्त अहबाब आते हैं तो खुश दिली के साथ तावन किया करें। ये जो कुछ भी हमारे पास है ये अल्लाह की अता है। अगर वो चाहता तो हमारी बजाय किसी और को दे देता, तो वो अल्लाह हमें आजमाता है कि मेरा दिया हुआ मेरी राह में देते हैं या नहीं। तो मेरे भाइयों, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ अच्छा तावन करते जाएं। बड़ी ज़रूरतें हैं, अल्लाह ताला इसका दुनिया में भी बदला देगा, अल्लाह आखिरत में भी बदला देगा। ये अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत है जिसमें फ़ायदा तो बेइंतहा है, लेकिन नुकसान का कोई तसव्वुर भी नहीं हो सकता। अल्लाह हमें ईमान और यकीन के साथ अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।